हेलो स्टूडेंट्स, आज के ना इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ में रीड करने वाली हूँ स्टोरी। एंड स्टोरी का नेम है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, सो इट इज विस्ताज बुक एंड पेज नंबर इज 56. Okay, this is a conversation, right? And it is basically, I would tell you if it's lengthy or not. Not so lengthy. I will be covering it today itself. Okay, चलिए बच्चों, एक सेकंड वेट करना बेटा। बेटा एक सेकंड वेट करेंगे क्या आप? हाँ जी, एक सेकंड। चलिए, ऑन द फेस ऑफ इट हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीन 1। सीन 1 में क्या है? इट इज अ मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्स गार्डन है, लैम का गार्डन है वहां पर। दिस इज देयर इज द ओकेशनल साउंड ऑफ द बर्ड सॉन्ग। बर्ड सॉन्ग मीन्स वहां पे बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं। एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग, एंड वहां पर ट्री लीव्स के भी रस्टलिंग की आवाजें आ रही हैं। ठीक है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly, though through the long grass. डेरी जो है वो इस गार्डन में आ रहा है। एंड वो कहते हैं ना टाप के आना, तो वो वॉल को टाप के आ रहा है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through it, right? Through the long grass. He pauses. वो बीच में रुकता है और फिर से चलने लगता है। Then walks again. He comes round a screen of bushes. And फिर वहाँ पे ना एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी bushes होती हैं। ठीक है, came around a screen of bushes. And that is the point when Mr. Lamb speaks to him. And Derry is startled. Now you have to understand that what is startled. Startled simply means हैरान हो जाना. Startled का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना. ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो मिस्टर लैम का गार्डन है, वेयर देयर इज ओकेशनल साउंड ऑफ द बर्ड सॉन्ग, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। एंड ऑफ द ट्री लीव्स रस्टलिंग, एंड जो ट्री के लीव्स हैं उनके भी रस्टल करने की आवाज आ रही है। मीन्स ट्री के लीव्स भी मूव कर रहे हैं, बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, ट्रीज की आवाजें आ रही हैं, एंड डेरी के फुटस्टेप की आवाजें आ रही हैं। As he walks slowly and tentatively. Tentatively का क्या मतलब है? Hesitantly. ठीक है, as he walks slowly, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, एंड बहुत hesitant से मूव कर रहा है, and hesitantly through the long grass. He pauses, then walks on again until he comes to the long bushes, comes to the screen of bushes. वहाँ पे एक screen थी जिसके ऊपर bushes ही bushes थे, bushes ही bushes थी, and उसको अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, but actual में जो उस घर का मालिक था वो अंदर बैठा हुआ था, that is Mr. Lamb. But वो ये सोच के आया था कि घर के अंदर कोई है ही नहीं। जैसे ही वो Mr. Lamb की आवाज सुनता है वो एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है। He was startled. समझ में आया यहाँ तक आपको? Mr. Lamb उससे बोलते हैं, अब मैं बारी बारी नहीं बोलूंगी मिस्टर लैम डेरी, तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। माइंड द एप्पल्स डेरी, तो कहते हैं कि भाई एप्पल्स थोड़ा सा ध्यान से आना। व्हाट, हुज दैट, तो lambs by name, mind the apples, crab apples those are, wind falls in the long grass, you could trip. I thought this was an empty space. I didn't know there was anybody here. That's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. I thought it was an empty house. So it is. Since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop a day like this is not a day to be indoors. I have to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The garden is always open. Only you climb the garden wall. You were watching me? You were watching me? I saw you, but the gate is open. You could have come from there as well. You're welcomed. I sit here. I like sitting.
I would not come to steal anything. No, 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 no. Young lad steals. They scrum the apples. You are not so young. I just wanted to come in into the garden. So you did. Here we are. Then you don't know who I am. A boy of 13 or so. 14. But I have to got to now. Goodbye, goodbye, goodbye. Nothing to be afraid of. It's just a garden, just me. But I'm not. I'm not afraid. People are afraid of me. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. See what? What they think. What do they think then? You think, here's a boy, you look at me. And then you see my face and think, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I'm not. Not poor. You are afraid. Anybody would be. I am when I look in the mirror and see it. I'm afraid of me. तो ये हमने 2 पेजेस पढ़ लिया. अब मैं आपको एक बार इसका बता देती हूँ, है ना, जस्ट बता देती हूँ. तो देयर वाज अ मिस्टर लैम्स गार्डन इन विच देयर इज अ साउंड ऑफ बर्ड्स एंड द लीव्स आर rustling, so voice of that is also coming. Derry's footsteps are heard as he is walking slowly and hesitantly through the long bushes, and then he stops and then keeps walking again, and he basically stands in the front of the wall of the bushes where the Mr. Lamb speak, and Derry is startled, Now Mr. Lamb asks Derry to be careful because crab apples, they fall due to windfall in the long grasses. Since the grasses are long, they are not visible and Derry could trip over them, right? But Derry thought that this was an empty space where he came, and he becomes really afraid when he see Mr. Lamb there. And a person standing there, so he just wanted to go out, and he and but Mr. Lamb tries to comfort him by saying that it's okay. I don't mind if people come into my place, and I always keep my doors open. Anybody can come in. आपको आप ही वॉल्ट आपके आए हो, मेरे आप दरवाजे से भी आ रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना. तो डेरी मेक श्योर किया उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ. हाँ, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मैंने कब कहा आप चुराने के लिए आए. छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चुराते हैं ये एप्पल्स वगैरह. तुम तो उतने छोटे हो भी नहीं हो. यू वोंट स्टील एनीथिंग, आई एम श्योर. मैं तो सिर्फ अंदर ही आना चाहता था. कहते हाँ, और तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तुम डरो मत, गार्डन और मैं हूँ. डोंट बी अफ्रेड, जस्ट सिट डाउन, है ना. अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, है ना. तो कहते मैं नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं. कहते क्यों, वॉट. कहते तुम, जैसे कि वो धीरे धीरे उसको बताता है, यू लुक एट मी and then you see my face, and you think that's bad. face bad क्यों है, उसके ना एक साइड जली हुई थी एसिड की वजह से, है ना. that's bad, that's a terrible thing. कहते आप तो सोचोगे ये कितनी बैड बात है, कितनी खराब बात है, कितनी बुरी बात है, कितनी बेकार, दिखने में कितनी बेकार है. ugliest thing. You will think of me as a poor boy. तो मुझे बेचारा समझोगे, but let me tell you, I am not a बेचारा. कहता you are seeing me a poor boy because you are afraid of me. You are afraid of me. And then he says, it's okay. Even when I see myself in the mirror, I myself get afraid of me. Then, no, not the whole world, not the whole of you, not of you. Not the whole of you, not of you. Pause. Yes, pause. Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder. कहता कि थोड़ी देर के बाद में जब थोड़ा सा ठंडक हो जाएगा, I'll get the ladder and stick and pull down those crab apples. They're ripe for it. I make jelly. It's a good time of the year, September. Look at them, orange and golden. That's a magic fruit. वो बात को उसने चेंज कर दिया. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. Derry, why have you changed?
What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you don't ask me because you are afraid to. You want me to ask? Then tell me then. I don't like being with people, any people. I should see. To look at it, I should say, you get burned in a fire? ठीक है, you got burned in a fire. Not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burned it all way. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this only and it would never change. No. Mr. Ram says no. Daddy says, aren't you interested in listening to my story? You are a boy who came into the garden. Plenty do. है ना, उससे बोलते कि उसने नो बोला था, किसी और कारण से बोला था, वो क्लियर नहीं किया गया। तो डैडी उससे पूछते कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बात सुनने में? तो मिस्टर लैम बोलते नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। उससे फिर एक्सप्लेनेशन देता है, अपने आप को जस्टिफाई करता है, क्या बोल के? प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं तो सब में इंटरेस्टेड हूँ। There is nothing God had made that does not interest me. Look over there, look over there. What can you see? Daddy says rubbish. Rubbish? अरे ध्यान से देखो, what do you see? Just grass and stuff and weeds. Some call them weeds. If you like, then a weed garden. There's a fruit, there are flowers, there are trees, there are herbs of different types. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called as a weed and another a flower? Where's the difference? It's all life. Same as you and me. कहते क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा मुंह जल गया तो? है वो तो तुम इंसान ही ना, तुम भी अलाइव हो मैं भी अलाइव हूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे और तुम्हारे में? डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लाम कहते हैं क्यों भाई, हम क्यों नहीं सेम है? मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तुम थोड़े जवान हो, तुम्हारा बर्न्ड फीस है, मेरा 10 लाख है ना, क्या फर्क पड़ता है ना? तुम वहां खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या फर्क है? डैडी पूछता है तुम आपकी 10 लाख क्यों है? Real one got blown off. Lemmy lamb, some kid says. Haven't you heard them? You will. Lemmy lamb, it fits, doesn't trouble me. But you can put on trousers and cover it up. But still वो अपने आप को बुरा सबसे बोलता है, क्या बोलता है कि आप तो ट्राउजर के साथ छुपा भी लोगे, मैं कहाँ अपना मुंह छुपाता फिरूंगा? They don't have to notice and stare. Some do, some don't. They get tired of it in the end. There is plenty of other things also to stare at, like my face, like crab apples, or the weeds, or a spider climbing up a silken ladder, or my tall sunflowers. Things. It's all relative, beauty and the beast. अब यहाँ तक क्या है बच्चा? जब वो पहली बारी उनको बताता है कि ना मेरा फेस आप नहीं पूछोगे क्या, फिर मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जब भी लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझसे डर जाते हैं एंड वो मुझे पुअर बॉय बोलते हैं और सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मुझसे डर जाते हैं। एंड फिर बोलता है कि इट्स ओके, कोई भी डर जाएगा, मैं खुद भी डर जाता हूँ जब मैं खुद को मिरर के अंदर देखता हूँ, ठीक है? एंड फिर वो कहता है कि then Mr. Lamb tries to change the topic. What does he says? Then he starts telling him that in a few minutes he will get a ladder and a stick with which he would just pull down those crab apples hanging from the trees and then he would make its jelly. And he says that it's a good time of the year, September. And he says that and he crab apples, they were orange and golden and refers to them as the magic fruit, है ना? एंड बाय बेस्ट पिकिंग मतलब सबसे बेहतर वाले वो वहां से निकालता है एंड मेक्स जेली। एंड यू कुड हेल्प मी विद दैट, है ना? कहते मैं स्टिक लेके आऊंगा, अभी लैडर लेके आऊंगा, क्रैब एप्पल्स उतारूंगा। क्रैब एप्पल्स को वो क्या बोलता है? मैजिक फ्रूट बोलता है, जो ऑरेंज एंड गोल्डन कलर के होते हैं एंड इनमें से बेस्ट पिकिंग कर कर वो उसकी जेलीज बनाएगा। Now Derry is like very much angry and says that why have you changed the subject? सब लोग ऐसा ही करते हैं मेरे साथ में, सब ऐसे ही बुरा करते हैं,
this boy was like so much disheartened, like so much sad, क्योंकि लोग उसका मजाक बनाते थे उसके फेस का. तो बेसिकली इट्स अबाउट एवरीथिंग, है ना. लाइक दिस बॉय का फेस जला हुआ था तो लोग उसका मजाक बनाते थे. कोई इंसान बहुत पतला होता है वो उसका नुकसान वो मजाक बनाते हैं. कोई इंसान बहुत छोटा होता है हाइट में तो उसका भी मजाक बनाते हैं. कोई इंसान बहुत लंबा होता है हद से ज्यादा, उसका मजाक बनाते हैं. कोई इंसान बहुत पतला होता है उसका मजाक बनाते हैं. कोई इंसान बहुत मोटा होता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान वो मजाक बनाते हैं, है ना. अगर कोई इंसान नॉर्मल है, ब्यूटीफुल लुकिंग है, हैंडसम, उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देंगे. भाई तेरे बाल ऐसे, तेरा ये ऐसा, या उसकी नेचर में कमियां निकाल देंगे. तो कहीं ना कहीं लोग फॉल्स निकालते रहते हैं, जैसे वो खुद बड़े परफेक्ट होते हैं. खुद उतने परफेक्ट होते नहीं है, बस लोगों के सामने उनको चुगलियां करनी होती हैं. मतलब इट्स लाइक दैट, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, है ना, हु इज नॉट फिजिकली दैट गुड, बट यू नेवर नो, है ना. मतलब that how much that thing is doing a negative impact on that particular person, जिसके बारे में तुम कंटिन्यूअसली जब भी उसे देखते हो उसको बुरा बोलते हो. And this is very much sad that people around us, the first thing that they see when they meet a person is their physical appearance. And it's not just that they see, देखते तो सब है ना. The worst thing is that they comment on it, है ना. Like they're so free to comment on someone's physical, which I don't think would make any difference, है ना. You would say, no one will like you, है ना, because your physical appearance is not good. You never know that. It's not like that, है ना. ब्यूटी, है ना, समवन इज ब्यूटिफुल, है ना. तो they marry that person thinking that that person is very beautiful, है ना, for such a nice physique, है ना, such a nice hair. But when you start living with that person, at the end what matters is that person's nature, that person's how that person is actually, not the physical appearance. Physical appearance will only attract you for a few, for a little bit amount of time, maybe for 1 month, 2 months, 4 months, 1 year, 2 years, not more than that. If the person's nature is not good, you won't be able to live with that person for more than 1 year, I would say, not more than 6 months. If the person's nature is not good, then the beauty, you won't care about the beauty, because beauty is not, at the end of the day, it's the nature of that person which is going to help you, is going to support you, is of use to you. Beauty is just, when you see someone beautiful, so that's not love, that's infatuation, attraction, है ना. तो ये सब चीजें गलत है. दैट इज जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस. तो इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी एंड नॉट बीइंग ब्यूटीफुल एंड बीइंग ब्यूटीफुल. दैट ब्यूटी इज इट जस्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. आफ्टर दैट ब्यूटी वोंट मैटर. ब्यूटी विल मैटर ओनली इन द फर्स्ट फ्यू टाइम डेज, और when the first few times you meet that person. After that, what will matter is that person's way of talking, if that person is not giving respect to you, how will you survive with that person even though the person is very beautiful. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तो हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है. तो इस तरह से बाहर से देखकर कभी भी किसी को जज मत करो. हो सकता है तुम्हें उस इंसान को देखकर कुछ थॉट्स आए हो, जस्ट डोंट ब्रिंग इट टू योर टंग, कीप दैट एज इन. अगर उसमें कोई कमी है, अगर वो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे पता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है. आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है. तुम भगवान नहीं लगे तुम उसको बताओगे कि भाई तेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं अभी छू मंत्र करूंगा तेरी ये प्रॉब्लम गायब. या तो ऐसा करो, फिर ऐसा नहीं कर सकते. तो इसी तरह से जो हमारे डैडी हैं वो भी बहुत दुखी थे, क्योंकि सब लोग तो उसका मजाक बनाते थे, सब लोग उसका टॉपिक भी चेंज कर देते थे जो भी वो बोलता था, है ना. कहता तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ही कैसा हुआ, तुम डर गए हो ना मुझसे. मिस्टर लैम्स कहते अगर तुम बताना चाहते हो तो भाई बता दो, है ना. कहता आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल. एंड मिस्टर लैम थोड़ा सा और बोलते हैं, हाँ आई थिंक तुम्हारा फेस फायर में चल गया था. डैडी कहते नहीं, फायर से नहीं चला था, एसिड से जला था.
नाउ मिस्टर लैम सेज नो, वो नो बोलते तो किसी और कारण से हैं, बट डेरी समझ जाता है कि वो मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। बट मिस्टर लैम फिर उसे क्लियर करते हैं कि नहीं, मैं तो सबकी बातों में इंटरेस्टेड है। कहते हैं आप वहां पर देखिए, वहां पर क्या है, कहता रबिश है। तो कहता है रबिश नहीं है, वो वीड गार्डन है, मैं लगाता हूँ वीड गार्डन। ये तो एक पर्सपेक्टिव है, मतलब अब कैसे एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को वीड बोलते हो और दूसरे ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को आप फ्लावर बोलते हो, क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही तो लाइफ है ना। मैं तो खुद उगाता हूँ यहाँ पर। कहते तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है? मैं बैठा हूँ, तुम खड़े हो, मेरे को 10 लेग है, तुमको फेस बनते, तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि क्या फर्क है ना। वो भी ग्रीन फ्लावर है, वो भी वो है, दोनों को रिस्पेक्ट दो ना यार। तो ऐसी तरह से तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारा फेस नहीं, मेरे 10 लेग है, तो हम दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है। तो टेरी डेरी उनसे पूछता है कि आपकी 10 लाख क्यों? कहता है वॉर के टाइम पर इट गॉट ब्लोन ऑफ एंड पीपल यूज टू कॉल हिम लेमी लैम, बट उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट डेरी स्टिल गोज ऑन टू से आप तो इसको ट्राउजर के साथ कवर भी कर सकते हो। मिस्टर लैम कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग करते हैं, मतलब कुछ लोग मेरे को देखते हैं, बोलते हैं, एंड फिर वो थक जाते हैं, क्योंकि वो और घूरते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं घूरने के लिए, है ना। डेरी बोलते जैसे कि मेरा फेस, वो फिर से नेगेटिव हो जाता है। मिस्टर लैम बोलता है लाइक क्रैब एप्पल्स। तो वो कहते हैं नहीं भाई, फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हो गए जो मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, है ना, या फिर ये वीड्स हो गए जो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, या फिर ये जो स्पाइडर यहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, जो मेरे बड़े बड़े सनफ्लावर्स हैं, इन सबको लोग देख के खुश हो जाते हैं, इनको इनको घूरते हैं लोग। ठीक है। क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, टॉल सनफ्लावर्स हो गए, स्पाइडर क्लाइंबिंग हो गया, दोबारा दोबारा दोबारा, क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, स्पाइडर क्लाइंबिंग हो गया, या फिर टॉल सनफ्लावर्स हो गए। मिस्टर लैम कहता है मतलब ब्यूटी ब्यूटी इज ऑलवेज रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट से आपको कभी एक टीचर मिल जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर, एंड आपको उनसे बहुत अच्छे समझ में आने लगता है। से फॉर एग्जाम्पल बायो, हाँ यही मेरे मेंटर हैं, यही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें 10 दिन के बाद ना यूट्यूब पे रैंडमली कोई एक और टीचर मिल गया, वो टीचर उनसे भी बेहतर पढ़ा रहा है। 10 दिन पहले तुम्हें वो टीचर बेस्ट लग रहे थे, अब तुम क्या बोलोगे, अरे नहीं यार, वो टीचर तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो मस्त है। तुम्हें 1-2 महीने के बाद एक और टीचर इंटरनेट पे नजर आए, अरे ये टीचर कितने मस्त है ना। अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि और किस तरह से पढ़ाया जाता है ना। और इसका मतलब ये नहीं टीचर्स चेंज करते रहो, बट ठीक है ना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप एक रिलेटिव है वो, अगर आपको वो दूसरे टीचर ना दिखते तो आपके लिए पहले वाले टीचर ही बेस्ट थे, ऑफ कोर्स बेस्ट थे, बट क्योंकि आपको दूसरे टीचर दिख गए तो अब आपके लिए पहले वाले उतने अच्छे नहीं है जितने दूसरे वाले। मिस्टर लैम बोलता है अच्छा हाँ, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब इसका क्या मतलब है भाई? कहते हैं आप बताओ, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? मुझे क्या लगता है इसका क्या मतलब है? कहता आप ये मत सोचिए कि लोगों ने मेरे को ये कहानियां पहले नहीं सुनाई हैं, है ना। कहते हैंडसम इज एज हैंडसम डज। कहते ब्यूटी, मेरे को सारी कहानी पता है, लोग मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट कहानी सुनाते रहते हैं। आप ये मत सोचिए मेरे को नहीं आती है ये कहानी, आई नो दिस स्टोरी, है ना। तो फिर वो बोलता है कि ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम तो इट चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। कहता बट मेरे को तो कोई किस भी नहीं करेगा, है ना। वो तो एक ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीट, आई वॉन्ट चेंज। कहता अगर उसको वो किस नहीं करती वो मॉन्स्टर्स बीट हो जाता। कहता मैं नहीं कभी चेंज हो सकता है ऐसे ना, अगर मेरे को कोई किस करे चाहे ना करे मैं चेंज नहीं हो सकता, बट मेरे को कोई किस करेगा भी नहीं, ठीक है। इज दैट द वे? नो यू वोंट। हाँ कहते ऐसे तो तुम नहीं वैसे चेंज होगे। एंड वो फिर वो बोलता है कि हाँ वैसे भी मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, मतलब दो मैं किस करने से ब्यूटीफुल नहीं हो जाऊंगा, बट नो वन विल एवर किस मी। सिर्फ मेरी मदर ही मुझे किस करती है, एंड वो भी मुझे दूसरे साइड ऑफ द फेस पे किस करती है, एंड वो भी सिर्फ इसलिए करती है ताकि मुझे अच्छा लगे। और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी मदर मुझे किस करे, और उसका कारण उसने क्या बताया है कि वो सिर्फ इसलिए किस करती है, वो किस करना नहीं चाहती है, बस वो इसलिए करती है ताकि उसको ये ना फील हो कि मेरा फेस जला हुआ, तो मेरे को कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे मुंह पे हाथ नहीं लगाता, ये सब कुछ, है ना। कहते मैं क्यों पसंद करूं, है ना, और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे कोई किस करे चाहे ना करे, है ना। और मेरी मदर भी किस इसलिए करती है क्योंकि ताकि मुझे बुरा ना लगे। मिस्टर लैम बोलता बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम।
कहते बट क्या तुम्हें मतलब फर्क पड़ता है कि तुम अगर उनको किस ना करो? वो डैडी कहते क्या समझ नहीं आया? गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, तुम्हारा मन करता है उनको किस करने का? लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, हु वुड लेट मी? कहता मुझे करने कौन देगा, चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे। कौन बोल सकता है यार? हो सकता है, हाँ हो सकता है। आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी सुंदर नहीं दिखूंगा यार। मतलब जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना आपके जितना, मैं सेम ही दिखूंगा, सिर्फ फिर मेरा आधा ही मुंह होगा। So you will, but the world won't. But the world's got a whole face, and the world's there to be looked at. और कहते दुनिया इतनी सी नहीं है जिसे तुम देख रहे हो. The world is very much big. That's world got a whole face. Do you think this is the world, the old garden? When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. मतलब मैं जहाँ भी होता हूँ वही मेरा वर्ल्ड है. Does your leg? वो फिर से वो कुछ और बात करते हैं. Does your leg hurt you? It doesn't hurt, boy. When it came out, did it? Surely it did. Like now I mean when the tin stops at the top anywhere. No, in wet weather it happens sometimes, but it is not very significant. Okay. Now Daddy says, "Oh, that's something else." They all say, "Look at all those people who are in pain." है ना? फिर एक तो मुझे वो ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी सुना देते हैं, फिर वो मुझे बोलते हैं, "Look at all those people who are in pain and brave and they never cry and complain and they don't feel sorry for them." मिशेल लैम बोलता है, भाई मैंने तो ऐसा नहीं बोला, है ना? वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा होता है। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर वर्स देन यू, है ना? यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, यू माइट हैव बीन बॉर्न डेफ सॉरी, है ना? यू माइट हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और यू माइट बी डार्क इन योर हेड एंड ट्रिपल इज लाइक दिमाग नहीं चल रहा वैसे वाला, ठीक है? तो कहते हैं कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि, है ना, उन लोगों को देखो जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, वो कभी नहीं रोते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, अपने लिए बुरा भी नहीं फील करते हैं, है ना? हो क्या पता अगर तुम डेफ हो जाते तो उससे तो ये बेटर ही है ना? अगर तुम ब्लाइंड होते, अगर तुम्हें सारा टाइम व्हील चेयर में रहना पड़ता, उससे तो ये बेटर है ना? मिस्टर राम कहते हैं हाँ बात तो उनकी सही है वैसे। डैडी इज अटका हुआ है, वो क्या बोलता है, बट इससे मेरा फेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। देयर वाज वन विमेन थी वहां पर, बस स्टॉप पे थी, एंड शी वाज विद अनदर विमेन, एंड वो मेरी तरफ देख के बोलती है, एंड मैंने इतना ही सुना था, बाकी मैंने नहीं सुना, लुक एट दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द फेस ओनली मदर कुड लव। ऐसे फेस को तो सिर्फ मदर ही लव कर सकती है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं तो क्या तुम हर चीज बिलीव कर लेते हो तो अभी तुम सुनते हो सकता है वो किसी और को बोल रही हो या किसी और चीज के बारे में बोल रही हो। डैडी बोलता है इट वॉज क्रूएल यार, इट वॉज क्रूएल, नो वन कुड एवर से दैट टू एनीवन। मिस्टर लैम बोलते हैं क्या पता वो आपकी बात नहीं कर रहे हो, वो अपने बात में कुछ बीच में बात कर रहे हो, है ना? कहते मैंने सुना है कि तुमने पूरी जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं सुना पॉजिटिव चीजें। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कहते मैंने तो बहुत सी बातें सुनी है, ठीक है? तो मिस्टर लैम बोलते हैं फिर अब तुम अपने कान बंद रखो, मत सुनो। You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions that you don't understand. मतलब पहले आप बोलते हैं कि आपने कुछ और चीजें नहीं सुनी है, फिर आप बोलते हैं कि अब आप मत सुनिए, अपना कान बंद कर लीजिए, क्या इसके अलावा तुमने कोई जिंदगी में बात नहीं सुनी है ना? मतलब क्या, मतलब आप कुछ क्या बोल रहे हो? मतलब स्ट्रेंज बातें कर रहे हो, आप पेक्यूलियर बातें कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे हैं। आई लाइक टू टॉक। मिशेल कहता है नहीं मुझे तो बस बात करना पसंद है, मैं कुछ भी बात कर लेता हूँ, है ना? आपको क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं बस पूछता हूँ, इट्स ओके, है ना? मतलब अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं। वो कहते हैं उसको बोलते हैं कि भाई तुमने जाना तो फिर जाओ, नहीं बात करनी तो मैं इतना ही पेक्यूलियर लगता हूँ, इतना ही मैं तुम्हें ऐसे लगता हूँ कि मैं फालतू क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ। डैडी कहते हैं यस बट, अब वो कहता है कि चलो ठीक है, बच्चा है, छोटा है, बोल देता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि बात चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। अब उसका बट वो है तो बड़ा इंसान ही, है ना? ओल्ड है, समझदार है, तो वो चाहते हैं कि वो मेरे से उसका कोई फायदा हो जाए। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं तुम वहां देख रहे हो, पहले उसको उसने एग्जाम्पल दी वीड वाली, है ना? अब वो उसको एग्जाम्पल दे रहा है हाइव ऑफ बीज वाली। पहले उसने एग्जाम्पल दी किसकी दी?
वो ट्रीज वाली, वीड्स वाली है ना। Why one green tree is called as a weed, another a flower, right? Both have a life. तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। कहते कुछ लोगों को लगता है कि वो बीज जो है वो क्या कर रही हैं, बज बज ऐसी आवाजें निकाल रही हैं, ठीक है, बज। पर कहते जब तुम उसको लंबे समय तक सुनते हो ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बज नहीं कर रही हैं, वो हम कर रही हैं, ठीक है। जो ज वाली आवाज होती है ना वो इरिटेटिंग होती है लोगों के लिए, पर अगर आप उसको लंबे समय के लिए सुनते हो ना तो आपको हम सुनाई देता है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो बीज है वो सिंग कर रही है, वो बोल नहीं, मतलब बस नहीं कर रही है, वो हम कर रही है, वो सिंग कर रही है मेरे लिए तो। बट कुछ लोगों के लिए वो बस कर रही है, मेरे लिए वो हम कर रही है ना, मेरे लिए वो सिंग कर रही है, उनको वो इरिटेट कर रही है। तो ये तो पर्सपेक्टिव है ना बच्चे। डैडी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब है ना। मिस्टर लैम बोलते हैं अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम नहीं आते। डैडी कहते हैं नहीं नहीं आ जाता मैं, मतलब ऐसी बात होगी ना इसलिए ऐसा बोल रहा है। मिस्टर लैम बोलता है नहीं आते ना तुम। डेरी बोलता है, डेरी क्या बोलता है, डेरी सेज इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, है ना। कहता अगर फिर कहता है कि हाँ मतलब मान जाता है उसकी बात कि हाँ अगर आप होते तो मैं नहीं आता, क्योंकि वो उसको ट्रेस पासिंग कंसिडर करता है कि ऐसे किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, ठीक है। अब मिस्टर लैम कहते नहीं नहीं इसलिए ये कारण नहीं था तुम्हारा ना आने का, है ना। हाँ तो डैडी बोलते फिर वो सच्चाई पे आ जाते हैं। हाँ एक्चुअली मुझे लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं है ना। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ बीक, मेरे को अच्छा नहीं लगता, है ना। तो मिस्टर लैम बोलते ठीक है पर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, है ना, कौन सी बड़ी बात है, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। जो मिस्टर लैम ने अभी तक 3 मेजर बातें बोल दी हैं। पहले उन्होंने बात करी वीड वाली, फिर उन्होंने बात करी किसकी, किस वाली, फिर उन्होंने बात करी किसकी, बीज वाली, फिर उन्होंने बात करी किसकी, वो वुमेन वाली, कि तुमने क्या सिर्फ उसी को सुना है, नाउ कीप योर ईयर्स शट, है ना। अब मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें इतने ही लोग नापसंद है, इतना ही तुम्हें डर लगता है, इतना ही अगर तुमसे लोग डरते हैं तो व्हाई डोंट यू लॉक योरसेल्फ अप इन द रूम एंड नेवर लीव इट। ठीक है तो तुम अपने आप को फिर एक कमरे में बंद कर लो ना। कहते तुम्हें पता है एक इंसान था जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। There was a man who did that. He was afraid. Afraid of what? A bus might run over him. A donkey might kick him. Lightning might strike him, and he might trip over the banana skin. He might love a girl and might get heartbroken, he's कहता है कि मैं बनाना स्किन पे गिर जाऊंगा एंड फिर लोग मुझे देखकर हंसेंगे, तो हर चीज से वो डरता है। बस माइट रन ओवर हिम, मैन माइट वो खांसी करेगा उसके अंदर जर्म्स आ जाएंगे, डंकी माइट किक हिम, लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, माइट लव अ गर्ल। तो डैडी बोलता है क्या वो पूरा जिंदगी फिर कमरे में ही रहा इन सब के डर के चक्कर में। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ कुछ टाइम के लिए तो रहा। कहता उसके बाद वो मर गया। कैसे कैसे? कमरे के अंदर उसके पिक्चर गिरी, मतलब कमरे में बैठा बैठा भी वो मर गया, बताओ। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, बताओ। ठीक है बच्चा। हाँ तो कहते हैं मिस्टर लैम यू सी बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स, पेक्यूलियर टू मी, पेक्यूलियर टू सम। कहते हैं डैडी बोलता है कि यार आप अभी भी देखो पेक्यूलियर बातें कर रहे हो, बड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ होंगी कईयों के लिए पेक्यूलियर, बट सबके लिए पेक्यूलियर नहीं है ये बातें। कहते हैं अब सारा दिन क्या करते हैं पूरा दिन? कहते हैं मैं धूप में बैठता हूँ, मैं सारा दिन बुक्स पढ़ता हूँ, है ना। तुमने सोचा था ना मेरा घर खाली है, बट मेरा घर खाली नहीं है। इस घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, इस घर में बहुत सारी बुक्स है और ये घर भरा पड़ा है बुक्स के साथ में, एंड मैं सारा दिन यही बुक्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो डैडी के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि आपके घर में कर्टन्स क्यों नहीं है?
ठीक है, तो आपको पूरी कहानी की आउटलाइन याद हो रही है। सबसे पहले वो उससे मिला, उसने बोला मैं सबसे अगलीस्ट थिंग हूँ, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, तुम पूरे खराब नहीं हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर नामदेव ने फिर ऐसा बोला कि, है ना, फिर उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि बीच में पॉज आ गया ना, कुछ तो बोलना ही था कि तो मैंने अभी लैडर लाऊंगा, स्टिक लाऊंगा, क्रैब एप्पल्स उतारूंगा, जेलिस बनाऊंगा, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज सितंबर। ठीक है, यूज टू कॉल हिम एज द मैजिक फ्रूट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो गुस्सा हो जाता है डेरी, तो फिर वो बताने लगता है कि एसिड हो गया इस तरह से, है ना। मिस्टर लैम बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड इन यू। सबसे पहले वो एग्जांपल देता है वो वीड वाली, और फिर उसके बाद में वो ब्यूटी एंड बीस्ट वाली, उसके बाद में वो मैन वाली भी बताता है कि इस तरह से वो डर के अंदर बैठ गया था। फिर उसके बाद में वो बताता है कि वो बीस की, है ना। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि तुम उनसे उन्हें मत सोचो, है ना, कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर किसिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद में वो मैन की बात बताता है। फिर वो दूसरी बातें करते हैं। ठीक है, कर्टन्स, विंडोज एंड एवरीथिंग। मिस्टर लैम बोलता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स शटिंग थिंग्स आउट, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं दरवाजे बंद रखूं। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, है ना। आई लाइक द लाइट एंड एज वेल एज द डार्कनेस एंड हियर द वॉइस ऑफ द विंड व्हेन माई कीपिंग द विंडोज ओपन। तो डैडी कहता है हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। क्या? विंड नहीं, लाइट नहीं, डार्कनेस नहीं, मुझे पसंद है व्हेन इट्स रेनिंग। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट वेरी मच व्हेन इट्स रेनिंग। मुझे बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है। तो मिशेल आम बोलते हो आप मतलब पूरे तो लॉस नहीं हो, मतलब आपको भी नेचर पसंद है ना, तुम्हें मतलब अब बातें तो सुनाई देती हैं, यू लिसन। टेरी बोलता है क्या बातें कर रहे हैं ये, एंड फिर वो बोलने लगता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर। कहते देखो मैं लॉस तो नहीं हूँ, बट एक प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी जब मैं नीचे होता हूँ ना तो मेरे ऊपर मेरे घर वाले पता है क्या बातें करते हैं, पता नहीं है क्या करेगा बच्चा हमारा, है ना। कैसे वो मतलब वर्ल्ड के साथ में कैसे वो गेट ऑन करेगा इस तरह से दिख रहा है वो, है ना। ऐसे फेस के साथ में ऐसा भी होता है ना कि ऐसे फेस के साथ में उसके साथ शादी कौन करेगा, इसका घर कैसे बसेगा, ये अपनी लाइफ में क्या करेगा, ऐसे फेस के साथ में वर्ल्ड के साथ कैसे वो करेगा मैनेज सारी चीज़ें, है ना। तो मिस्टर हम उसे मोटिवेट करते हैं कि भाई क्या बातें कर रहे हो यार, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास में दो हाथ हैं, तुम्हारे पास में आँख है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, लेग्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है, इतना कुछ तो है तुम्हारे पास में, है ना। यू कैन गेट ऑन द वे यू वांट एंड यू कैन इवन गेट बेटर देन दी अदर्स, है ना। तो कहते हैं कि कैसे, मतलब मैं दूसरों से बेटर कैसे हो सकता हूँ, कहते जैसे मैं हो गया हूँ। कहते कि आपके कोई दोस्त है, कहते हंड्रेड्स। बट कहते आप तो इतने सारे बड़े घर में अकेले रह रहे हो। मिस्टर लैम बोलता है भाई मेरे फ्रेंड्स में हर जगह पे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, दरवाजा हमेशा खुला रहता है, दे कम एंड दे सिट देयर इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर। तो छोटे बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, टॉफी के लिए। कहते मैं टॉफी पता है किसके साथ बनाता हूँ, हनी के साथ बनाता हूँ। कोई भी आता है जैसे तुम आए हो, है ना, तो कहता बट मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। कहते हैं ऑफ कोर्स तुम हो, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम्हें मानूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी कहता बट तुम्हें आपको मेरे बारे में नहीं पता है ना, यू डोंट नो अबाउट मी, यू डोंट नो मी। कहता मतलब यू डोंट नो मैं कहाँ से आया हूँ, आपको मेरा नाम नहीं पता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम मेरे को तुम्हारा घर नहीं पता, तुम कहाँ से आए हो, है ना। तो वो बोलते हैं कि डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बिफोर यू बिकम माई फ्रेंड। तो वो कहते हैं कि भाई क्या मुझे आपके बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, उसको एक फाइलिंग में पुट करना होगा, है ना, तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने से पहले। तो डैडी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कहते हैं कि चलो बता दो फिर तुम नाम अगर तुम चाहते हो तो डैडी बोलते हैं वैसे तो मेरा नाम डेरिक है बट मुझे वो पसंद नहीं है, तो डेरी आप मुझे बोल सकते हैं। कहते हैं कि आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं, सॉरी हाँ आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं बट सॉरी 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 थोड़ा गलत हो रहा है, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड। कहते हैं आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं बट मैं आपको अपना दोस्त नहीं मानूंगा। तो विशाल कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं।
है ना। तो कहता है फिर वो रीज़न भी जस्टिफाई कर देता है क्योंकि वो हो सकता है कभी वापस ही ना आए वहाँ पे उस जगह पर। आई माइट नेवर कम अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी योर फ्रेंड। कहते क्यों, फिर क्यों नहीं तुम मेरे दोस्त हो सकते, कैसे कैसे हो सकता मैं आपका दोस्त, लोग आते हैं लोग जाते हैं, वो थोड़ी दोस्त हो जाते हैं। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, है ना, बट यू नेवर सी देम अगेन, है ना। इट डजंट मीन दे आर योर, इट डजंट मीन कि वो आपको अपना फ्रेंड मानते हैं। तो बट कहते हैं इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है, मेरे एनिमीज भी तो नहीं है वो। नो दे आर जस्ट नथिंग बट पीपल, दैट्स ऑल। मिशेल हम बोलते हैं पीपल आर जस्ट नथिंग, ऐसा ना मत बोलो। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। देर आर सम पीपल आई हेट। कहते कुछ लोग हैं जिन्हें मैं हेट करता हूँ। कहते इससे तो तुम्हारी बॉडी पे और नुकसान होगा, एक बॉटल ऑफ एसिड से भी तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। मिस्टर डैडी बोलते हैं ओनली, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू ऑफ माई लैंड, दैट्स देन वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ इनसाइड। जेलसी के साथ में, बुरे सोच के साथ में तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो, है ना। After I would come, one person said he would have been better off stopping in there, in the hospital. तो कहता है जब मैं आया ना घर पे, एक इंसान ने बोला he would have been better off stopping in there, in the hospital। कहता है उससे पता है क्या बोला, कहता है ये हॉस्पिटल में ही अच्छा था, है ना, कि उसे लगता है कि she thinks that blind people should be with the blind people, idiot boys with idiot boys, and people with no legs altogether, and people will burn faces altogether। तो मिस्टर लैम बोलता है वो कैसा वर्ल्ड होगा ना, इट वुड बी सो मच इम्बैलेंस्ड, है ना। डेरी बोलता है कि वैसे बात तो उसकी सही थी, कम से कम हमारे को कोई घुरेगा तो नहीं ना। तो मिस्टर लैम बोलता है तो यू आर, सो यू थिंक दैट यू आर जस्ट द सेम एज अदर ऑल अदर विद पीपल बर्न फेस। मतलब तुम्हें लगता है कि जितने भी और लोग हैं जिनके बर्न फेस तुम उनके जैसे ही हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस इज सेम, आप अंदर से भी सेम है ना। बट कहते हैं नहीं बट यार सब अलग 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 होते हैं, है ना। एवरीथिंग इज डिफरेंट इट सेल्फ, सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तेरी बोलते हैं हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, मतलब हम कैसे ये सब चीज़ें फिलोसफिकल बातें करते हैं। बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ। कहता डेरी बोलता है यू नो आई वुड लव टू लाइक, यू नो आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। कैसी प्लेस, अ गार्डन। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो गार्डन। ये तो घर खुला है। डैडी बोलता है बट ये मेरा तो नहीं है। कहते जो मेरा है वो तुम्हारा है, मतलब मैं दोबारा आ सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं ऑफ कोर्स। कहता है मिस्टर लैम बोलता है दैट नीडंट स्टॉप यू, डोंट माइंड। डेरी बोलता है इट वुड स्टॉप देम। ठीक है, तो डेरी बोलता है, मिस्टर लैम बोलता है यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे आसपास और भी लोग हो जाए। डेरी बोलता है ओ, बट मिस्टर लैम बोलता है कि तुम्हें उनसे, उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ आओ नहीं। ठीक है, डेरी बोलता है मैं तो आ जाऊंगा, वो डर के भाग जाएंगे। ठीक है, दे वुड माइंड मी व्हेन दे वुड सी मी हियर, देन यू विल लूज ऑल योर फ्रेंड। ठीक है, मिस्टर लैम बोलता है हो सकता है ना भी जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, एक बार रिस्क तो लेके देखो। डैडी बोलते हैं नहीं, आप अपने सारे फ्रेंड्स को खो बैठोगे, कोई नहीं मुझे चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, है ना। एवरीवन वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम मी, अगर वो हो सकते हैं अवे तो वो हो जाते हैं। मिस्टर लैम बोलते देखो मैं तो नहीं गया हूँ। डैडी बोलते नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। कहता जब तुम्हें पता, मैं जब स्ट्रीट पे आता हूँ ना लोग मुझे लेमी लैम चिल्लाते हैं, बट वही लोग डरते थोड़ी है मुझसे, डरेंगे क्यों, है ना। तो डैडी पूछता है तो आपकी कहीं लेग वॉर में चली गई थी। कहता हाँ। कहता फिर लेडर कैसे क्लाइम करोगे। ओ आई हैव लर्न टू डू, एंड यू नो बहुत टाइम है मेरे पास सीखने के लिए, एंड मैं धीरे धीरे कर लेता हूँ। कहता अगर तुम गिर गए और तुम्हारी नेक टूट गई ना तो तुम यहीं पर ग्रास पे मर जाओगे, अकेले मर जाओगे, है ना। तुमने बोलता ना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, कहते अगर तुम करना चाहते हो तो कर दो हेल्प, बट कहते माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, बट मेरे को अपनी मदर को बताना पड़ेगा। 3 माइल्स है वो मेरे घर से, मैं 14 साल का हूँ, बट फिर भी जानना चाहते हैं मैं कहाँ पर हूँ। कहता हाँ पीपल वरी, पीपल फर्स्ट, पीपल इरिटेट्स मी, है ना। गो बैक एंड टेल देम, 3 माइल दूर है वो, है ना। कहता तुम्हारे पास लेग्स हैं, भाग के जाओ बताया। कहता वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी बैक। कहता ये तो तुम बहाने मार रहे हो, है ना। तो कहता ओ तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ तुम्हें ही पता तुम क्या कर सकते हो, मुझे क्या पता। कहता इफ आई चूज, बोलता ही नहीं है पूरी स्टेटमेंट। इफ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट यू डू। कहते हाँ मुझे तो नहीं पता है कि तुम क्या करोगे इफ यू चूज, है ना। दे टेल मी डू यू हैव टू अग्री, आई डोंट नो व्हाट आई वांट। कहते मतलब ना अगर मैं चूज कर दूँ ना, मतलब वो मुझे बताते हैं ऐसे, तो कहते हैं मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा हो, यू नो जैसे गार्डन हो मेरा भी, है ना। तो कहते आप आपको भी मिल जाएगा कैसे।
वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीस, है ना। तो ये बोल के वो बोलते हैं कि भाई मुझे बीस को देखने जाना है, प्लीज मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चा, एक बारी मैं इसको ये 3 पेज में आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। तो कहते हैं कि मिस्टर लैम बोलते हैं अरे नहीं तुम कर लोगे, यू हैव गॉट 2 legs, आईज एंड ईयर्स, आपके पास में टंग है, आपके पास में ब्रेन है ना, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट एंड लाइक ऑल द रेस्ट, लाइक ऑल द रेस्ट, and if you choose and set your mind to it, you can even get better than that. How will you get better than them? You will get better than them. And वो कहता है do you have any friends? So he says yes, I have a lot of friends. Then he says that and he says that people come, the gate is always open, and people come and sit here and in front of the fire in winter, and kids they come for apples and pears, and they also come for toffee, and he says that I make toffee with honey. कहते हैं कि लोग आते हैं यहाँ फायर के सामने बैठ जाते हैं, they come and sit here. And in the front of the fire in the winter, kids come for apples and pears, and for toffee I make toffee with honey. कोई भी आ जाता है, डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। कहते हैं ऑफकोर्स तुम हो, तुमने ऐसा क्या किया जिससे मैं मानूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। डेडी कहता है यू डोंट नो माई नेम, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैव कम। कहता है आई हैव टू पुट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड देन ओनली विल बी माई फ्रेंड। तो ही सेज नो। ठीक है, तो then he tells him his name and tells him that he won't consider him as his friend. People pass in the street and you might even speak to them but you never see them again, but that doesn't mean that they are your friends. But he says that doesn't even mean that they are my enemies. They are just people. He says that people are never just nothing, है ना। there are some people I hate, but then Mr. Lamb tells him that it could burn you inside. It is dangerous than a bottle of acid. And Derry says that it is genuine that I hate the people, because when I came back from the hospital, one person said that he would better off with there only, है ना। But then Mr. Lamb says it would be really imbalanced, everything, है ना। And everyone whose face is burnt is not like you. Everyone is different in their own aspect. ठीक है, तो he watches, listens, and thinks about the things, and therefore he is able to speak all of that stuff. And then he says that I would love to stay at this place. And then Mr. Lamb asks him that he can come anytime he wants, but he says that he will lose all the friends, because if he'll come, everyone would be afraid and would run from there. He says that why would they afraid of you? People say me lammy lamb, है ना, लंगड़ा लैम ऐसा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो आते हैं, एप्पल्स लेकर जाते हैं, पियर्स लेकर जाते हैं, मेरे पास से टॉफीज लेकर जाते हैं। तो डरते थोड़ी है वो मुझसे, है ना। तो कहता है आई विल क्लाइंब द लैडर। आप कैसे क्लाइंब करेंगे, है ना। तो कहता है आई हैव लर्न एवरीथिंग, तो आई विल डू इट। उससे बोलते हैं कि आप जाइए भागे। तो कहते हैं अगर मैं चला जाऊंगा ना तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वो कहते हैं ये तो तुम बहाने मार रहे हो, तुम खुद ही आना नहीं चाहते हो। बट वो कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे आने नहीं देंगे, मेरी मदर मुझे आने नहीं देगी। ठीक है, बट वो प्रॉमिस करता है कि मैं आऊँगा। ठीक है, तो कहता है भी मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक ऐसा ही गार्डन हो जिसमें मैं रह सकूँ आपकी तरह। मिस्टर लैम बोलते हैं ऑफ कोर्स यू विल फाइंड आउट, यू जस्ट हैव टू वेट, वॉच, लिसन, सिट हियर, है ना। तो और फिर वो बोलता है कि यार मुझे ना बीज देखनी है, बातें हम थोड़ी बंद करते हैं। ठीक है, कहते जो दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं वो भी आपसे ऐसे बात करते हैं। some do, some don't, I ask them, I like to learn, I don't believe in them, I don't think anybody ever comes। कहता मुझे लगता कोई आता होगा आपके पास में, है ना, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, सब मीन से होते हैं, है ना। कहते आप मुझे पता है कि आप यहाँ पे अकेले रहते हो, आपकी मिजरेबल सी लाइफ है, एंड किसी को फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो या मर गए हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहता ठीक है तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कहता चलो फिर मुझे तुम मुझसे कुछ नाम बताओ, है ना, नाम बताओ। कहता है कि आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स एंड यू लिव अ मिजरेबल लाइफ एंड नो वन नोज दैट इफ यू आर एवर अलाइव और डेड, है ना। देन ही टेल्स देम देयर नेम, टॉम, डिक, हैरी, एंड फिर वो उठ जाता है एंड बीस के पास में चला जाता है। डेरी बोलता है आई थिंक यू आर क्रेजी, तुम पागल हो मुझे लगता है। मिस्टर बोलता है हाँ ठीक है बोलते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। मिस्टर लैम बोलता है हाँ ठीक है तुम मुझे क्रेजी बोलो, एंड दिस इज अ गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक अगेन, है ना।
एंड जैसे तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं क्रेजी हूँ एंड ये बोलकर तुम कभी वापस नहीं आओगे, इस तरह से लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारा बर्न फेस है, वो भी बहाने मारते हैं एंड फिर वो तुम्हारे पास में कभी वापस नहीं आते हैं। तो डैडी बोलता है मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसने मेरा मजाक बनाया अभी, है ना, कहता है यू आर लाइक दी अदर्स, you like to say things like that, है ना, if you don't feel sorry for my face you are frightened of it, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो इससे मतलब तुम डरे हुए हो, and if you are not frightened then you think I am ugly, अगर तुम डरे नहीं हो तो इसका मतलब तुम अगली हो। दोनों तरफ से उसने फंसा दिया उसको, है ना, मैं डेविल हूँ ना, तुम मुझे डरते नहीं हो, मैं डेविल हूँ ना, डेविल हूँ ना, मैं डेविल हूँ ना, है ना, तुम ऐसे नहीं सोचते हो, ऐसे शाउट करता है वो चीज सारी। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, वो सोचता है बच्चा है यार कोई बात नहीं, है ना। If you don't feel sorry, you're frightened. If you're frightened, then you are think I'm ugly. है ना, तो डैडी says no you don't quietly, है ना, फिर डैडी चुपचाप से बोलता है आई थिंक तुम नहीं सोचते हो मैं अगली हूँ, मैं डेविल हूँ, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, तुम ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचते हो। कहता आई एम गोइंग बट आई कम बैक टू सी यू, वेट आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ 10 लाख, मेरी कोई 10 की लाख थोड़ी, मतलब भाग के अभी वापस आ जाऊंगा। अब वो घर पे जाता है मदर के पास, मदर क्या बोलती, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक मैंने उसके बारे में बहुत बातें सुनी है, बहुत बुरी बुरी बातें भी सुनी है मैंने, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, तुम्हें हर वो चीज जो तुम्हें सुनाई जाती है तुम्हें वो नहीं सुननी चाहिए मदर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो अबाउट द पीपल एंड यू आर नॉट सपोज टू गो बैक देयर। डैडी कहता तुम्हें किस बात का डर लग रहा है मदर, what do you think he is? An old man with a tin leg, lives in a huge house without curtains, has a garden. I want to be there and sit and listen to the things. Listen to what? Bees singing, him talking. What's he got say to you? Things that matter, things nobody else has never said, things I want to think about. कहते यहाँ बैठ के सोच ले, वहाँ नहीं जाना, think here only, think here only. कहता आई हेट इट हियर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। कहता हाँ ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम्हारा फेस चला हुआ ना इसलिए, है ना, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इवन इम्पॉर्टेंट एज ही टोल्ड मी, इट्स वॉट आई थिंक एंड फील। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया बंदे का, एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, आई एम गोइंग बैक देयर only to help him with crab apples, only to look at things and listen, but I'm going. You stop here. No, 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 no. If I don't go back there, I will never go anywhere in the world again. अगर तुम मुझे वहाँ नहीं जान दोगे तो मैं जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, दरवाजा बंद करता है, भाग जाता है, ठीक है, वहां पहुंचता है। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल फॉल्स। अब वो एप्पल उतारने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम, ठीक है। क्रैश, लेडर फेल्स बैक, लेडर गिर जाती है, उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। एंड देन देयर इज साइलेंस, ही इज डेड। देन ही ओपन्स द गार्डन गेट, है ना, स्टिल पैंटिंग, हाँफ रहा है वो अभी, भाग गया है ना। डैडी बोलता है यू सी आई केम बैक, यू नो यू सेड दैट आई वुडंट एंड दिस सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। ही स्टॉप्स, कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार यहाँ से। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक। Terry begins to weep because समझ जाता है कि यार he is no more. So here we are done with such a lengthy story. कोई बात नहीं, खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी, on the page of it written by Susan Hill. Here the chapter ends. Thank you so much. Have a good day.